Very warm welcome to the Soulful Essence Tarot reading. Let's see what does we uphold for the next week for Aries. So here we see what messages do we have for Aries. Okay. So let's see. 9 of Swords. Okay. 7 of Wands. Then we have 8 of Swords. Okay. 4 of Swords. All right. And let's see. We have the Tower. Okay. And then the Page of Cups. Okay. So as we can see, Aries, it's the highest possibility, like for the next week you'll be in this state of highly disappointments, overthinking, lack of sleep. Okay, maybe you have just come to an abrupt ending of something, like you just came to know about something and you were so much stuck in your head about it, like you were not aware what is going on and how does all this happen. Your life has just taken a 360-degree turn, especially your thoughts. You are in highly stressed position right now, and you are in this position like everything is coming to an end in a very abrupt way, like there is no trust, no people are good thinking, your mind is working and active very fast, is acting very fast, is just taking to a place which doesn't even exist. Okay, there may be illusions that you are not seeing the reality clearly. All right, and after the Tower moment, see, the Tower moments is something like breaking down everything, just your world fall apart. Okay, you are not highly aware what happened and how did everything just came to an end. You're so much stressed in the next coming week, but despite of that, you are not losing hope. You are not losing hope, Aries. You are starting from the scratch, and you're of this view that I will begin again. Okay, as I can see कि आप बहुत परेशान रहेंगे आने वाले थोड़े एक हफ्ते के लिए. आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया, ऐसी स्थिति मेरी कैसे हो गई, ये सब एकदम से ऐसा कैसा होगा, पूरी वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन. और आप शायद हील भी करने की कोशिश कर रहे होंगे. मे बी आप इतने स्ट्रेसफुल मोमेंट में भी खुद को हील करने का ट्राई करोगे, रेस्टिंग. यू आर लाइक कि मैं बहुत ओवर वर्क सोच रहा हूँ, ओवर थिंक हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा शांत रहना चाहिए. आप उसकी भी कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी पर आप जानते हैं कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई. पर इस रियलिटी से तो वाकिफ़ हैं कि अब चीज़ें वैसी नहीं रहीं, पर फिर भी आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, और शायद आने वाले टाइम में आप और भी अच्छा करेंगे, बिकॉज आप शुरू से शुरू करेंगे. आपको होगा कि नहीं, अब मैं दोबारा से इस चीज़ को शुरू करूँगा कि मुझे अब आगे क्या करना है, सिंस चीज़ें अच्छी नहीं रहीं. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर. 6 of Wands. Okay, and then we have Temperance. All right, 6 of Wands, Temperance. Okay, and what else we have? We have the 7 of Swords. Okay, 7 of Wands, 7 of Swords, again the number 7. Confusion maybe. 2 of Swords, see, dual nature. All right, now let's see what do we have more. 6 of Cups. Okay, so basically what do you see, Aries, after knowing that there is something, overthinking is going on, stressful situation है वहाँ पे जहाँ आप अभी अब स्टक हैं. आप हील भी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप जानते हैं कि चीज़ें वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी. फिर भी आप अभी भी इस सिचुएशन में जीतना चाहते हैं, एज अ विक्टोरियस बाहर आना चाहते हैं. आपने इतने स्ट्रेसफुल मोमेंटम में भी बहुत पीस, बहुत ज़्यादा पीस तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है अपने पास, बहुत ज़्यादा पेश. आप अभी कंफ्यूज हैं कि किसको सही और किसको गलत कहूँ. आप अभी थोड़े डिलेमा में हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, बट फिर भी यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स. यू आर बैलेंस्ड, यू आर लुकिंग एट द पास्ट मेमोरीज कि क्या लाइफ थी यार पहले, अब क्या हो गया है. पर फिर भी आपने इसको लेके इट्स लाइफ के चैलेंजेस हैं, और मैं फिर भी यहाँ पर सब्र रखूँगा, पेशेंस रखूँगा, और इस सिचुएशन को भी जीतूँगा, विक्ट्री लेकर आऊँगा. दो आप कुछ डिसीजन में बहुत कंफ्यूज होंगे, आपको नहीं पता चल रहा कि मैं इस डिसीजन में आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ. आप थोड़ा सा इमोशन होकर ज़्यादा सोच रहे होंगे, प्रैक्टिकलिटी से कम सोच रहे होंगे, लॉजिक नहीं लगा रहे होंगे. तो आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को शट डाउन करके, अपना ओवर थिंकिंग को शट डाउन करके
थोड़ा सा रियलिटी में रह कर के फ़ैसला लेना होगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, बिकॉज़ आने वाले हफ्ते में शायद आपको बहुत ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जहाँ आपको लगेगा कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये मेरी उम्मीद में भी नहीं थी, पर फिर भी मुझे ये हार्ट एक या कह लीजिए ये मतलब जहाँ पर मैंने खुद को डिफीटेड महसूस कर रहा हूँ, स्ट्रेसफुल, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, वहाँ पर उस सिचुएशन में अभी आप हैं। ये में भी आपके वर्क प्लेस से ज़्यादा आपके इमोशनल रिलेशनशिप्स, इमोशनल वेलबींग से ज़्यादा रिलेटेड है, बिकॉज पेंटिकल्स का कार्ड अभी तक नहीं आया है। इमोशंस के कप्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा है। ओवर थिंकिंग, वॉन्ट, फायर, पैशन, वर्क को लेकर शायद हो सकता है पर फाइनेंस को लेकर नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग कि आने वाला हफ्ता थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, बट आप यहाँ इस हफ्ते में भी बहुत पेशेंस रखेंगे, इस सिचुएशन बहुत विक्टोरियसली बाहर निकलना चाहेंगे और बहुत बैलेंस लाइफ जीना चाहेंगे। आप शायद पुरानी मेमोरीज को भी मेमोराइज कर रहे होंगे, रिमेंबर कर रहे होंगे, बट यू आर ऑफ दिस वीक इट्स ओके, नाउ आई हैव टू टेक गुड हेल्थ, गुड डिसीजन ऑफ मी। सो आप वहाँ पर बहुत पेशेंस रखा है आपने। द टेम्पर इज अ मेजर आर्काना, is though it's a Sagittarius card, but it's also being the fire sign. So this is Aries, and let's see what the oracle messages are telling, giving the advice for you now. So let's see what do we have for Aries. Okay, we already have 2 cards. Okay, one more, just one more round. Okay, we have got 2 cards. Okay, let's see. A lot of messages for Aries, I guess. Okay, so first card, the Emperor, Archangel Uriel. Stability and efficiency, taking charge of a situation, ambitious plans. ये आपको डायरेक्टली कह रहा है कि अभी आपको अपने प्लान्स की तरफ बहुत फोकस होकर स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए स्टेप्स लेने चाहिए। ये चार्ज ऑफ सिचुएशन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करना चाहिए और आप इससे बाहर भी आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ एरियल। Material needs get fulfilled in magical and unexpected ways, act of kindness, giving or receiving with a grateful heart. स्टिल आप शायद किसी मेंटल स्ट्रेस में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, इमोशनल टर्मोइल में जा रहे हैं, बट स्टिल इट्स कि अगर आप इस वक्त भी सब्र रख लें, काइंडनेस रख लें, लेने देने का जो ग्रेटफुल एक बड़ा दिल रखें, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं इस टफ सिचुएशन में भी। ठीक है, देन वी हैव नाइट ऑफ एरियल, अगेन इट्स अ नाइट, trustworthy, understanding, devoted, funny. There is so much to accomplish. Make a very detailed plan. Being watched over by someone kind. आप चाहे अभी एक सिचुएशन में हैं जहाँ आपको लग रहा है सब कुछ एंड हो गया है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, पर आप ये चीज़ समझें कि आपको अभी भी कोई बहुत ही काइंड पर्सन आपको वॉच ओवर कर रहा है. They are blessing you out, and please have the trust, faith in Lord and universe. Okay, live a little life-hearted life, though the situation is not good right now. Maybe you are stressed in a particular direction, but still I would suggest to be, please have a very detailed plan if you want to get out of the situation, and someone kind is just near about you. Okay, next we have Ace of Raphael. Ace of Raphael पे it says कि positive new emotional experience, fulfilling romantic relationships, deep and lasting spiritual insights. ये जो भी एंडिंग हुआ है अब्रप्टली या जैसे भी, ये आपको एक नई दिशा देगा। यहाँ से आप एक न्यू पॉजिटिव इमोशनल चेंज एक्सपीरियंस करेंगे। फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपको आगे मिलेंगे जहाँ आपको लगेगा कि यार आई वॉज नॉट वर्दी फॉर ऑल द पास्ट थिंग्स, बट दिस न्यू थिंग दैट आई एम हैविंग, दिस वॉज माई वर्थ, आई डिज़र्व बेटर। डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपको मिलेंगे। आप शायद धार्मिक ज़्यादा बन जाएंगे, भगवान की तरफ आकर्षित होंगे, आपको लगेगा कि सब माया है एंड आई हैव टू जस्ट रीड टू अ गुड स्पिरिचुअल लाइफ। तो आप बहुत ही ज़्यादा एक नया इंसाइट अपने में लाएंगे, एक नया विजन आपको देखने का, एक न्यू पर्सन बन जाएंगे। तो ये सब जो बाय अभी आपको टफ टाइम आप देख रहे हैं, थॉट्स ओवर थिंकिंग का, आपका कुछ एंड हो गया है, वो सब एक नई शुरुआत है, आपको कुछ अच्छा बनाने के लिए आए हैं। Then we have new beginnings. See, Aries, this is the card you're waiting for. Archangel Jeremiah, starting a new life. Your earlier phase of stress, of anxiety, of, overthinking, sleeplessness is over. It's done, okay? This is coming to an end. A forgiving and compassionate review of the past. आप माफ़ कर दीजिए जिसने अगर आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत परेशानी हुई है किसी की वजह से, तो माफ़ कर दें। आप बहुत दयालुता से, एकदम बहुत सहनशीलता से आगे बढ़े।
पास्ट को छोड़ दे, रिव्यू करते हैं तो उसको बहुत धैर्य से देखें कि कोई बात नहीं, वो लाइफ लेसन्स थे, और एक नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ें। ये आपके लिए आज के बहुत अच्छे मैसेजेस हैं एरीज, and I hope you are being guided and blessed. And now we can have one more card from Moonology, okay? Let's see if there is any of the messages for you Aries that we were getting. Okay, let's see what do we have for Aries. Okay, one more shuffle. Okay, okay, let's see what do we have for Aries. What do you need to release? Waning moon. It means Aries कि अगर आपको कुछ पीछे छोड़ना है अब तो एक सही समय है। प्लीज़ आप जो भी बैगेजेस आप होल्ड कर रहे हैं, स्ट्रेस आप होल्ड कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग आप होल्ड कर रहे हैं, जाने दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। So this is all we have for Aries. I hope this reading resonates, and if it doesn't resonates, please do not force yourself and leave the rest for the others. And hope you have a great Aries. Keep watching Soulful Essence Tarot for the next videos and guidance. Okay, bye bye. Have a great week. Next week, have a great week. Okay, Aries. God bless you, and universe is there protecting you out. Bye bye. Thank you for watching.